أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سر آ رہی ہے. تو کل الحمدللہ ہم نے آخری مرکب توصیفی شروع کرے تھے، اور ہم نے مرکب توصیفی میں بنیادی طور پر یہ سیکھے تھے کہ مرکب توصیفی بنانے کے لیے ایک اسم ہونا ضروری ہے، اور اس کی ایک یا ایک سے زیادہ صفات آئیں گی. اس کی صفات مرکب اضافی بھی آ سکتی ہے. اور میں نے ایک چیز بتایا تھا، یہ ایک واحد ایسا مرکب ہے جس کے دو جز کے درمیان بھی کوئی چیز آ سکتی، یہ برداشت کرتا ہے. تو اس کا پہلا اگزامپل یہ تھے ہم نے علم نافیت، یعنی نفع بخش علم، نفع دینے والا علم. اور ہم نے جملہ اسمیہ میں مرکب توصیفی ڈال کر دیکھے تھے، اور خصوصاً مبتدا میں ہم نے یہ مرکب ڈالے تھے، جس کے ایگزامپلس یہ ہیں الولد الصالح، یعنی نیک لڑکا. اس کے بعد ہم نے نکیرہ خبر لائے تھے، اور ہم نے اس طرح عبارت پڑھے تھے کہ ایک نیک لڑکا ہے بیٹھا ہوا. پھر اس کے بعد پڑھے تھے ہم نے تسنیہ کے لیے الولدانی الصالحانی جالسانی. تو عبارت کا معنی ہے دو نیک لڑکے ہے دونوں بیٹھے ہوئے. پھر اس کے بعد ہم نے جمع پڑھے تھے الاولاد الصالحون، یعنی کہ تمام لڑکے بچے بچیاں سب مل کے اولاد کہیں گے، ہے بیٹھے ہوئے جالسون. پھر ہم نے مونس کا صیغہ لیے تھے البنت الصالحۃ جالست، ایک نیک لڑکی ہے بیٹھی ہوئی. پھر تسنیہ کیے تھے ہم نے البنتان الصالحتان جالستان، دو نیک لڑکیاں ہے دونوں بیٹھی ہوئی. پھر اس کے بعد میں بتائے تھے ہم البنات، یہ جمع ہے مقصر ہے لیکن عاقل ہے. البنات الصالحات جالسات، معنی ہو گیا تمام نیک لڑکیاں ہے بیٹھی ہوئی. آج ہم دیکھیں گے خبر میں ہم یہ مرکب ڈالیں. تو خبر دیکھیے زید ولد صالح، تو زید ہے معرفہ، اور یہ مرکب ادھر آیا ہے، یہ اس کو نکیرہ کے حکم پہ پڑھیں گے. زید ہے ایک نیک لڑکا. زید و حامد، اب یہاں پہ واو عطفی آیا ہے، زید اور حامد دونوں بھی کے بارے میں بتائیں گے. ولدانی صالحانی، دونوں کے دونوں نیک لڑکے ہیں. زید و حامد و محمد محمود اولاد صالحون. تو کیا ہے بھائی، زید، حامد اور محمد، یہ کیا ہے، بچے ہیں نیک. اب آیا اپنا زینب، مونس آ گئی. زینب بنت صالحۃ، زینب ہے ایک صالح لڑکی. زینب و مریم بنتان صالحتان، زینب اور مریم دو لڑکیاں ہے صالح. زینب و مریم و فاطمہ بنات صالحات. تو اس طرح سے دیکھیے آپ، یہ دونوں کا جوڑ اس طرح لگ رہا ہے کہ ہم نیلے سائڈ میں دیکھ رہے ہیں پورے، یہ نیلے سائڈ میں آسمانی طرف پورے کے پورے مرکبات ہیں، اور مبتدا اور خبر مل کر یہ جملہ اسمیہ بن رہے ہیں. آپ کو کوئی سوال ہے یہاں تک کا تو پوچھیے.
अब एक मुरक्कब इशारी देख लीजिए, आजा, आजा ये मारिफा है, अल कुराना ये भी मारिफा है, तो ये बनेगा हाजल कुराना, हाजल कुराना। तो पहला पोर्शन है इस्मुल इशारा, दूसरा है मुशार इलैहि। ठीक है, चलिए कोई पढ़ के मुझे मायने समझाइए। चलिए ऑनलाइन में कौन पढ़ेगा बेटा? हाजल वाला दो, मायने बोलो, हाजल वाला के मायने बोलो। ये लड़का, ये एक क्या लड़का, बात? ये लड़का, एक नहीं बोलो, ये लड़का। हाँ ये लड़का आगे का देखिए, खबर में सालिहुन, मारिफा की नकीरा, ये लड़का नेक है, ये लड़का है नेक। ठीक है। चलिए अगला पढ़िए। क्या बोलना को बहुत हाज़ानिल वलदानी सालिहानी, हाँ ये दोनों लड़के नेक हैं। शाबाश। पढ़िए, आगे पढ़िए। हाउलाइल औलादो सालिहूना, वो सब लड़के नेक हैं। वो कहाँ है यहाँ पे? हाउलाए, हाँ उलाई का मतलब ये का लगा तो वो होते, हाँ उलाई का बोलते हैं तो दूर जाए, नजदीक के लिए हाँ उलाई, ये तमाम लड़के है नहीं। आगे बढ़िए। ये तमाम लड़के नेक हैं। हाज़िल बिन्तो सालिहतुन, ये लड़की मायने बोलो। नेक हैं, नेक। चलो आगे पढ़िए। हातानिल बिन्ताने सालिहताने, वो दोनों लड़कियां नेक हैं, वो दोनों लड़कियां नेक हैं। अब मुझे बताइए, आपको ये और वो में फर्क नहीं दिख रहा? हातानी का मतलब क्या है? दूर के लिए जालिका होता है, जालिका जालिका। ये लड़कियां नेक हैं, ये दो लड़कियां। ये दो लड़कियां है नेक। आगे पढ़िए। हाउलाइल बनातो सालिहातुन, हाँ ये लड़कियां, ये सारी लड़कियां नेक हैं। शाबाश। तो जरा मुझे एक बार आ, इसमें इशारा के 12 अगर बताइए मुझे क्या क्या है, आपका कंफर्म करेंगे। ये एक हाजा, मुजक्कर क्या बोले? हाजा। ये एक हाजा, मुअन्नस, हाज़ही, वेरी गुड। वो एक मुजक्कर, हाजा, हाजा का दो, जालिक, हाँ जालिका, जालिक, जालिका। हाजा का दूर जाएगा तो जालिका बने। ठीक है। अच्छा, वो एक लड़की कैसा बताए? तिलका, शाबाश। अच्छा, ये दो लड़कियां बताओ, ये दो, ये दो हासान, बताओ। मुजक्कर, ये दो मुजक्कर बताइए। हाजानिल वलदानी, शाबाश। ये दो लड़कियां बताओ। हातानिल बिनतानी, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, आपको सब आता है, फिर भी आपने ऐसा कैसा गड़बड़ करे थे बोलते वक्त, ख्याल रखा करो। अच्छा, आप मुझे बोलिए, वलदु ज़ैदिन, कोई दूसरे बच्चे आई है जो अभी तक नहीं करे वो क्या नाम पुकारना पड़ेगा? हम बोलना सर, हाँ बोलो बेटा। वलदू पढ़ो। जैदिन, वलदू जैदिन, ये क्या है बताओ? मुरक्कब इजाफी है। वलदू जो है अखफ की आवा इसम है और मुजाफ है, और जैदिन मुजाफ इलैह है, जर्री हालत में है। बस। वलदू
अच्छा वलदो मारिफा है कि नकीरा? वो मारिफा है सर, कैसा बताए? अखफ किया हुआ है इसलिए, और मुजाफ जो है अखफ करने से वो नकीरा दिख रहा। लेकिन अगर यहाँ पे अगर आता वलदो, मैं लिखता था, वलदू जरा माइक बंद, एक सेकंड माइक बंद कीजिए, बाकी लोगों ने समझे। अगर मैंने लिखा वलदो तालिबिन, मैंने लिखा वलदो तालिबिन, तो वलदो मारिफा रहेगा कि नकीरा रहेगा? वलदू क्या सर, सुनने नहीं आ रहा। वलदो तालिबिन, वलदू तालिबिन, हम्म, तो वलदू ये मारिफा लड़का है कि नकीरा? मारिफा है कि नकीरा? एक स्टूडेंट का लड़का, मारिफा है सर। नहीं, ये ताबे रहता हमेशा से मुजाफ मुजाफ इलैहि के, मुजाफ इलैहि क्या रहा अभी? तालिबिन, तालिबिन नकीरा है। अगर मुजाफ इलैहि नकीरा है तो हाँ। मुजाफ भी नकीरा होता है। ऐसा, अच्छा। यहाँ पे आप सुनो, यहाँ पे जैदिन जो है हाँ जाति नाम है और मारिफा है, इसमें अलग है। मारिफा। इसमें अब आप सुनते नहीं तो मैं बोलते नहीं जल्द। बोलिए सर, बोलिए। हाँ, जैदुन जो है, जैदिन जो है एक अलम है, इसमें अलम है, मारिफा है, इसलिए उसका मुजाफ भी मारिफा है। अच्छा सर, ये करेक्शन कर लीजिए, करेक्शन को। जी सर, जी सर। हाँ चलिए, अब आप ही पढ़िए, ये पूरे पूरे के पूरे पढ़िए। हाँ जी सर, जी सर। वलदू जैदिन सालिहुन, वो जैद जैद का बेटा नेक है। शाबाश। अच्छा, आपने इसको नेक है बनाने के लिए क्या समझ में आया? आपने कैसा क्या बनाया है, क्यों डाले हैं? सर तनवीन तनवीन आए अगर है तो उसको है बोलते बोले ना आपने सर ने। नहीं, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। मैंने ये कहा कि हाँ। आपको नकीरा, नकेरा और, हाँ, नकेरा और मारिफा अगर कॉम्बिनेशन है तो उसको बीच में है लगाना। हाँ, तो सालेहुन क्या है? मारिफा की नकीरा है। नकीरा करेगा तो है लगा। देखो नकेरा है और हाँ 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 हाँ, जब खबर और आएगी तो अब आप मैं बोलूं तो वो, मैं अगर आप इजाजत दे तो मैं बोलता हूँ। बोलिए सर, बोलिए सर। तो खबर जब वाहिद मुफरद इस्म की होती है तो नकीरा होना कंपलसरी है, जी सर। और ये वाहिद मुफरद इस्म है, ये नकीरा रहने से इसके माखबल इससे पहले है लगाएंगे, जी सर। तो मायने होंगे जैद का लड़का है नेक। हाँ, जैद का लड़का है साले नेक। हाँ समझ में आया आपको? जी सर, जी सर। हाँ, मैं क्या कर रहा, थोड़ा फिल्टर लगा रहा हूँ, और आपको अच्छा आता है, लेकिन और अच्छा करना चाह रहा हूँ। जी सर। हाँ, आप पढ़िए, सेकंड पढ़िए। हाँ, वलदा जैदिन सालिहानी, हाँ, तो ये पहले जैद, चेक कीजिए, पहले हाँ चेक कीजिए, मारिफा जी, होने के लिए मुरक्कब आ रहा तो मारिफा ही रहेगा वो। जी सर। अच्छा, ये मारिफा क्यों है भाई? जैद का लड़का बोल के मारिफा क्यों आ रहा? ये जैद का लड़का बोल के मारिफा होगा सर। ये कैसा समझ रहे आप? जैद का लड़का होने से, जैद मारिफा होने से लड़का मारिफा होगा। और और दूसरी बात, दोनों का रिश्ता बता रहे, इसके मतलब हम उन्हें जानते हैं। हाँ, यानी रुको रुको, यानी वो जैद का लड़का है, हामिद का नहीं है, ये बात हमको कंफर्म मालूम है, इसलिए हाँ मारिफा है, ये मुब्तदा मारिफा है। खबर हाँ, कैसी है जरा चेक करके बताओ। सालिहानी खबर नकेरा है सर, नकीरा है, और मुसन्ना और रफा है। मुसन्ना है। अच्छा, और आयरब क्या है? और वालिदा वालिदा भी मुसन्ना है सर, वहाँ का नून अखफ होगा। अच्छा माशाल्लाह, इधर मैं खबर के मुतालिक पूछ रहा, हाँ, खबर रफा है, नसब है कि जर है? खबर जो है रफा है। नहीं सर, रफा है सर। खबर क्यों है रफा। रफा? वो क्यों? वो सारे हानि जो कैसा है ना, कैसे?
रफा है सर। आनी 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 हाँ, रफा है। हाँ, अलीफ से पहचानते हम कि ये रफा है। हाँ रफा है। एराब बिल हर्फ है ये। हाँ अच्छा, एरा इसका बिल। जी। अब मुझे बताइए, इसका नसब बना के बताओ। इसका नसब, अच्छा, साली है नहीं। शाबाश, जर बनाइए। साली है नहीं। वेरी गुड, शाबाश, माशाअल्लाह। चलिए अगला पढ़। हाँ, औलादू जैदिन सालिहूना। यहाँ शाबाश। औलादू, हाँ औलादू ये अपने जमा है सर। और अखफ हुआ हुआ है। जैद जैद की तरफ से वो मारिफा हुआ हुआ है और जमा है। और सालिहूना ये जो है नकीरा है, जमा है, इसलिए। अच्छा, औलाद की ओरिजिनल शक्ल क्या थी जब हमने अखद करे तो क्या था, वाली पहले था क्या? औला औला औलादू ये तो अखद किया हुआ है, ओरिजिनल माल क्या था? औला। देखो, उसके दो चीज बनेंगे ना। एक हाँ उसका बनेगा नकीरा और एक बनेगा मारिफा। उसका मारिफा बनाओ। अल्लाह औलादू बोलो। सर, अल्लाह औलादू। हाँ, और नकीरा। नकीरा औलादू। औलाद दून होता बेटे, औलाद दून होता ना, नकीरा में दो पेश आएंगे ना। हाँ औलादून औलादून, हाँ। हाँ, तो उसका नकीरा हटा दिए और अलिफ लाम हटा दिए, इसलिए उन्हें अखफ हो गया। हाँ जी सर। अंदाजों से चलना बंद करो। बोलो, हाँ, तो जैद की औलाद, जैद हाँ, की औलाद है हाँ, साले। नेक है, नेक है। हाँ, जैदी नेक नेक है है, उसका साले। उसके सब औलाद। अरे अगर आप लोग सब अपने माइक चालू रखे तो हम नहीं पढ़ाएंगे। आवाज घूम रही सर। बिंतु हाँ, जैदी। रुको, बिन, एक मिनट, सबको जरा माइक बंद कर दो सबको। हाँ, पढ़ो, आप पढ़ो। बिंतु जैदिन सालिहतुन। हाँ, बिंतु ये मुजाफ है। जैदिन बिंतु जैदिन, बिंतु मुजाफ है। जैदिन मुजाफ इलैह है। बिंतु जो है तो अखफ किया हुआ है, मुजाफ है। ओरिजिनल क्या था ये? ओरिजिनल क्या था ये? ओरिजिनल अल बिंतुन, अल बिंतु था। हाँ, और नकीरा क्या हो सकता था? और मतलब बिंतुन भी हो सकता सर, बिंतुन। हाँ, तो दो चीजें भी हमने हटा दिए। हाँ नकीरा तो, के अंदर के दो तनवीन, यानी तनवीन हटाए और अल हटाए, इसलिए हाँ तो अखफ हो गया। अखफ हो गया। तो हो गया दईद की बेटी हो गया। और यहाँ हाँ, साली उन क्यों आया? सालिहतुन वो मुन्नस होने से सालिहतुन आया। जैद तो मुजक्कर है ना जी। बिंतु मुजाफ कहाँ है सर? हाँ बिंतु भाई, ये, लेकिन जैद तो वो मुजक्कर है। हाँ नहीं जैद नहीं सर, बिंत का हाँ, बोल। हम्म, हाँ, तो आप हमेशा बोलेंगे इसके ऊपर हम्म, हुक्म किसका चलता? मुजाफ का चलता। बोलो। हाँ मुजाफ का हुक्म चलता है, अच्छा उसके ताबे है। उसके मुजाफ, ताबे, माशाअल्लाह, क्या अच्छी जुबान बोले अपने। उसके ताबे, हमेशा मुजाफ के ताबे रहेंगे लोग। जी सर, मुजाफ से नहीं का हमेशा याद रखना, वो सब मुजाफ के ताबे रहते। मुजाफ के चलिए ताबे अगला है। पढ़िए। अगला हाँ, पढ़िए। अगला बिनतानी, बिनता जैदिन, हम्म। ये हट गया सर, कोई भी हटा नहीं, सब बराबर है आपके वहां। बोर्ड नहीं आ रहा है। अच्छा, चलो, बुलाते उसको। आया क्या? नहीं आया सर, आता चलेगा। आता जी, सबर करो।
आया सर। हाँ, अब जरा पढ़िए। हाँ, बिन्ता तो ज़ैदिन। बिनता जैदिन हाँ, सालिहतानी। हाँ, मायने तो बोलो। जैद के बेटियां कितने बेटियां? जैद के दो बेटियां। दो बेटियां, जैद के दो बेटियां देखिए नेक हैं। देखिए देखिए देखिए, कोई पढ़ रहे तो उसको करेक्शन करने की कोशिश मत करो। आपका नंबर आया तो आप आ जाइए। अच्छा मुझे बोलिए, बिन्ता ये मुजाफ है क्या? मुजाफ, जी मुजाफ है, और जैद जो है मुजाफिल है। अच्छा, बिनता ओरिजिनल क्या था? ओरिजिनल बिनतानी क्या था? बिनतानी था अच्छा, सर। शाबाश बिनतानी शाबाश। अखफ अच्छा, होगा ये वो। सालिहतानी क्यों हुआ? सालिहतानी दो लड़कियां होने से सालिहतानी उसके बना। ऐसा मतलब मुजाफ के ताबे है ये। हाँ, मुजाफ के ताबे है, खबर मुजाफ के हाँ ताबे है। हाँ, चलो आगे पढ़िए। हाँ, बनातु जैदिन सालिहातुन। हाँ, जैद चलिए। जैद के बेटियां नेक हैं। तो ये अच्छा, तो ओरिजिनल बनातु मुजाफ ओरिजिनल। बनातु मुजाफ है, जैदिन मुजाफिल है। ये ओरिजिनल, ये अखफ किया हुआ है। ये ओरिजिनल है। बनातु ओरिजिनल बताओ, ओरिजिनल बताओ। बना बना इसका मारिफा नकीरा दोनों बताओ। मैं बनातु बनना इधर आना नहीं आ रहा सर। प्लीज। अल बना तो सुनो। अल बनातु, अच्छा अल मारिफा। बनातु। हाँ, और अच्छा बना तुम नकीरा। हाँ, बनातुन नकीरा पर। तो हाँ, समझ में आपको? माशाल्लाह माशाल्लाह। चलो दूसरे आ जाओ भाई, कोई दूसरे आ जाओ। जज़ाकल्लाह सर। हाँ आइए, कोई एक आना है, और वो बोलते टाइम पे दूसरे लोग नहीं बीच में आए। चलिए बोलिए भाई, कौन बोलेंगे? हाँ आइए आप भाई साहब, आप बोलिए ना, आइए आप। भाई कोई तो भी आना ही पड़ेगा, नहीं तो मेरे को बंद करना पड़ेगा। सर उसामतु वलदु जैदिन। आइए बोलो। हाँ, जैद का बेटा उसामा, जैद का बेटा। उसामा ब्रेड का बेटा, ये क्या बात होगी? ये तो मुरक्कब नाकिस हो गया। नहीं नहीं, जैद का बेटा उसामा बोलेंगे क्या सर? ये क्या दुनिया, पहला क्या है? उसामा। उसामा उसामा मुजक्कर है कि मुअन्नस है? जी, मुजक्कर है या मुअन्नस है? मुजक्कर है, मुजक्कर। शाबाश। लेकिन इस पर बोलता दिख रही। हाँ, वो है, ये अपना बोलता है मुअन्नस की निशानी, लेकिन है मुजक्कर। मुजक्कर। शाबाश। मारिफा की नकीरा है। मारिफा है सर। शाबाश। अब मारिफा है तो उसके बाद जो अगर एक मुफरद इसम आता तो वो नकीरा होता, लेकिन यहाँ पे जब खबर पे क्या आ रहा, वलदु ज़ैदिन, हाँ, यानी वलदु ज़ैदिन का मतलब जैद का जैद बेटा। हाँ, जैद का बेटा तो पहला तर्जुमा करो उसामा का, तर्जुमा करो उसामा। उसामा। बीच में क्या जैद का बेटा डालेंगे? उसामा है, जैद का बेटा। हाँ, अगर आप है नहीं डाले तो फंस जाएंगे ना आप। हाँ, उसामा है, अगर जैद आपने है अगर आपने है नहीं डाले तो जुमला इसमिया बनेगा ही नहीं हो। नहीं बनेगा। जी सर। गुड, वेरी गुड। चलिए आगे पढ़िए। उसामतु व तलहतु वलदा हाँ, जैदिन। आप बताइए। उसामा और तलहा है जैद के दो बेटे। अच्छा, ये जैद के दो बेटे कैसा पहचाने आपने? वलदा ये डुअल की निशानी है सर। वलदा थोड़ी नहीं, वलदा, डुअल की निशानी। वलदा डुअल की निशानी नहीं रहती। हाँ, ये क्या अलिफ है? है ना सर, कहाँ है? तस्निया की। है, लेकिन ओरिजिनली क्या था ये? ये वलदू था। वलदू कैसा रहेगा? दो के लिए वलदू कैसे बनेगा? नहीं, दो के लिए वो वलदानी रहेगा, वलदानी। हाँ, वलदानी का नून गिराया हमने।
नून नून ड्रॉप हो गिरा गया कर अखफ करे, नून ड्रॉप करके अखफ करे। अब समझ में आ रहा, मैं क्यों चेक कर रहा क्रॉस से? वलदानी का नून गिराए और हाँ उसको मुदाफ बनाए, हाँ तो फिर बन गया मुदाफ ज़ैद बनाए के अखफ दो करके बेटे। हाँ, उसामातो व तलहातो व तलहतु लदा ज़ैद। इसका इबारत का उसामा तर्जुमा ऐसा, सुनिए सुनिए, मुंह बंद रखिए। उसामा और तलहा के, बोलो, उसामा और तलहा है उसामा और ज़ैद के दो तलहा बेटे। है जैद के ज़ैद के दो बेटे, दो बेटे। चलिए जैद तीसरी के दो इबारत बेटे। पढ़िए, तीसरा उसामतु लफ्ज़। उसामतु व तलहतु व हमजतु हाँ औलादु जैदिन। तो हाँ, अब ये जमा है, ओरिजिनल क्या था औलादु ये? जमा है। जी सर, तो ये मुदाफ है क्या, औलादो? औलादु मुजाफ है सर। अच्छा, मुदाफ होने के लिए उसका ओरिजिनल क्या था? उसका औलादु वाव औलादु औलादु ये ब्रोकन प्लूरल है ना सर, रहने दो, उसका ओरिजिनल क्या था? वक़फ़ करे ना हमने, अकफ किए। हाँ, औलादुन तो ओरिजिनल क्या? औलादुन, शाबाश। और वाव अगर मारिफा होता तो, और मारिफा होता तो? मारूफा होता तो औलादुन। अरे नकीरा होता औलादुन, मारिफा हाँ क्या ऐसे होगा? ही अल औलादु। शाबाश। घबराना नहीं बेटे, आराम से बोलो। चलो उसके नीचे का। जैनबु बिन्तु जैदिन, जैनब राइट जैद की बेटी, है। जैनब जैनब हेलो, है जैद की बेटी। अच्छा, ज़ैनब वो ओरिजिनली क्या थी? अच्छा, ये बिंदु। जैनबु अब ये सर जो जैनबु ही रहता अपन, है ना। हाँ ठीक है, तो ये इसका मुजाफ क्या है? किसका सर? ये मुजाफ मुजाफ लिए है ना दोनों में, बिंतु हाँ ज़ैदिन। बिन्तु जैदिन जी, मुजाफ बिन्तु है, बिन्तुन रहेगा, ओरिजिनली क्या था? ओरिजिनली क्या था? बिन्तुन बिंतुन। और मारिफा रहेगा तो? अल बिन्तु। शाबाश। वक़फ़ करे हमने, अल निकाल दिए, तनवीन निकाल और दी, तो एक क्या मायने हो जी गए? सर, ज़ैनब है, बोलो। जैनब है जैद की बेटी। शाबाश। अब अगला पढ़ो। जैनबु व मरियमु बिनता जैदिन। तो हाँ जैनब पढ़िए, और मरियम है जैद की दो बेटियां। वेरी गुड, अगला पढ़ो। जैनबु व मरियमु व फातिमतु बनातु जैदिन। जैनब व मरियम व फातिमा है जैद की बेटियां। वेरी गुड, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। चलिए, कौन आ रहे भाई, अगला कौन आ रहे बोलिए, जल्दी करो, वक्त नहीं मेरे पास, मेरा टाइम खत्म हो जाएगा, हाफिज साहब आ जाएंगे। चलो चलो जल्दी करो, डॉक्टर साहब पढ़िए। मायने को, मुब्तदा है, हाँ मायने बताइए। जैद है, हाँ, ओके। अब ये पढ़िए, मोहम्मदुन रसूलुल्लाह। क्यों 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 बताना है? मोहम्मदुन इसमें अलम है और मुब्तदा की जगह रफा हालत में है, तो ये मुब्तदा हो गया। जगह से नहीं है वो, उसका तलफ़ुज़ हो रहा है, अलम है और लफ्ज़न रफा में किया, हाँ, और मारिफा में, हाँ, जो मुब्तदा है, हाँ, रसूलुल्लाह खबर है, ये मुरक्कब है। कौन सा मुरक्कब है? मुरक्कब इज़ाफ़ी है। अच्छा, इसमें मुज़ाफ़ कौन है? इसमें मुज़ाफ़ है रसूल, और ये ओरिजिनल क्या था? ओरिजिनल था रसूल। रसूल था, रसूल था, ये रसूल भी हो सकता है, रसूल भी हो सकता है, तो दोनों भी गिरा दिए, हल भी गिरा दिए, तनवीन भी गिरा दिए। तो ये बन रहा क्या, मायने पढ़िए। मोहम्मद रसूलुल्लाह, हाँ मायने पढ़िए। मोहम्मद है, हाँ, रसूल, बहुत अच्छा। तो मोहम्मद नकीरा होना चाहिए, जी जी। रसूल और रसूल का रसूल हुआ है, ऐसा ये क्या हो रहा है, क्यों भाग रहा है बस? चलिए ठीक है, आगे बोलिए, आगे कौन पढ़ेंगे भाई?
چلیے کوئی ہے پڑھنے والا؟ جلدی بولیے نہیں تو میں جا رہا ہوں. کوئی پڑھنا چاہتے ہیں؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. پڑھیے بیٹے. اللہ پہلی رب ہاں العالمین مبتدا ہاں خبر. وہ مبتدا اللہ خبر پڑھنا نہیں ہے، رب پہلے العالمین. اللہ رب العالمین کی تشریح کیجیے آپ. جی آرام سے دیکھیے. اللہ پڑھیے پہلے. اللہ یہ لفظ جلالہ ہے، یہ ذاتی نام ہے، اور یہ کیا ہے؟ اس میں علم ہے. ٹھیک ہے، مان لیے. جی اور اس پہ پیش ہے تو یہ رفع حالت پہ ہے. یہ یہ جب رب معرفہ رفع حالت میں ہوتا ہے تو مبتدا بننے کے قابل ہو گیا. اب آگے پڑھیے. ربو کیا ہے؟ رب. نہیں آپ کو نہیں آتا تو بولیے، میں سمجھاؤں گا. جی نہیں ہے، یاد نہیں ہے سر، بھول گئے. یاد مت کرو، میں سمجھا. یہ اوریجنلی دو ہو سکتے ہیں، ربن ہو سکتا ہے اور الرب ہو سکتا ہے. تو یہ اخف کیا ہوا اسم ہے جس کا الف لام اور تنوین ہٹائی گئی ہے، اس لیے یہ مضاف بنتا ہے. اور عالمین اس کے بعد میں جو آ رہا ہے، عالمین جو دکھ رہا ہے آپ کو، جی ہاں عالمینا ہے نا. ہاں. تو عالمینا کیوں آیا ہے؟ میں سمجھا. جی آپ کو سر مسلم چارٹ یاد ہے کیا؟ مسلم والا چارٹ یاد ہے؟ یاد نہیں مسلمون. سر. ہاں تو اب پڑھیے میرے ساتھ، پڑھیے. مسلمون مسلمن ایک مسلمان، ایک مسلمان. مسلمان مسلمان دو مسلمان، دو مسلمان. مسلمون مسلمون جمع مسلمان. مسلمون کا نصب اور جر مسلمین ہوتا ہے، ویسا ہی ہے. عالمون تھا، عالمینا، عالمینا بنائے. ٹھیک ہے، تو یہ بنے گا اللہ ہے عالموں کا رب. اللہ عالم کا رب. دیکھیں یہاں پر آئے پڑھنے لکھنے کے. مبتدا کیا بن گیا؟ اللہ ہو. اور رب العالمین کیا بن گیا؟ خبر. ہاں چلیے کوئی دوسرے آ جاؤ. اللہ ماشاءاللہ. مالک کو یوم مالک. الدین. اب ذرا بتائیے مجھے کیا کیا فل فارم کیا ہے؟ اللہ تو مبتدا یہ تو کلیئر ہے، لکھ دیا میں نے. مالک اخف کیا ہوا ہے. ماشاءاللہ. کیا تھا اوریجنل؟ کیا تھا یہ؟ یا تو یہ الملک ہوتا ہے یا المالک ہوتا ہے یا تو مالکن ہوتا ہے. شاباش 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 شاباش. انت ذکی ہو، آپ بہت سمارٹ ہیں. یہاں تک ہو گیا. یوما کیا ہے؟ مضاف ہے. ہاں کیوں مضاف ہے بیٹا؟ بتاؤ مجھے، بتاؤ. مضاف بننے کے لیے کیا چاہیے اپنے کو؟ مضاف اخف. اخف. اخف سے. ٹھیک ہے، اخف اخف. سے. جی سر. یومن. یومن تھا یا الیوم تھا؟ ٹھیک ہے، تو یہ اخف کیا ہوا ہے؟ نہیں ابھی دین پہ مچ گئی. مالکو. مالکو ایک اسم ہے، اور یوم بھی ایک اسم ہے جس کے نیچے زیر دکھ رہا ہے، یعنی کہ وہ مجرور حالت میں ہے. دن کا مالک. یہاں تک آ گیا. اللہ ہے اس دن کا مالک. جزا کے دن کا مالک بنانا ہے اپنے کو. ٹھیک ہے، تو مضاف بن گیا ہے مالکو، اور مضاف الیہ بنا ہے یومی. اب یومی نے پھر سے اپنا کیریکٹر بدلا ہے، پھر مضاف بن گیا انہیں. الدینی یہ مضاف الیہ بن گیا. تو یہاں پر کیا کیا آ رہا ہے ذرا غور فرمائیے آپ. ایک ایسا اسم ہے یہاں پہ جو ڈبل رول کر رہا ہے، یہ ہو رہا ہے مالکو. بے فکر رہیے آپ، میں پورا سمجھا.
ये हो गया मालिक, ये मुजाफ बन गया, क्या बन गया? मुजाफ। ठीक है भाई, क्योंकि अखफ है ये। अब अखफ होने के बाद, मुजाफ मिलने के बाद हमारा काम है उसके पड़ोस में जो इस्म आता है उस पे जर है क्या ढूंढना। तो यहां पे जर है, ठीक है। यौम का मतलब है दिन। अब ये दोनों मिलकर क्या बन गए भाई? ये बन गया मुजाफ इलैहि। तो इतना, इसको छोड़ो, अल्लाह है दिन का मालिक, ओके है। अब चेक करो, ये अब जो है इसको बाकी का छोड़ दो, अब खाली इस पे नजर रखेंगे। अब ये भी अखफ किया हुआ है कि नहीं? अखफ यौमुन नहीं है, अल यौम भी नहीं है, तो ये भी। अब यहां पर इन्हें मुदाफ इलैहि था, अब इन्हें अपनी शक्ल चेंज करके कैरेक्टर बदल दिया और बन गया इन्हें मुजाफ। अब इसके बाजू वाले को चेक करो, जबर में उसको जेर है क्या है, तो ये हो गया मुजाफ, और अब इन्हें बन गया मुजाफ इलैहि। तो ये दो कॉम्बिनेशन बन गए मुजाफ मुजाफ इलैहि, और ये दो कॉम्बिनेशन बन गए मुजाफ मुजाफ इलैहि। इन्हें कॉमन फैक्टर है, इन्हें एक बार मुजाफ इलैहि बन रहा, एक बार मुजाफ बन रहा, दो शक्लें बदल रहा। तो यहां से यहां तक पढ़ेंगे दिन का मालिक, यहां से पढ़िए जजा के दिन का मालिक। अब ये अल्लाह के बीच में ताली है, ताली अल्लाह है जजा के दिन का मालिक। आया समझ में? तो सिस्टमैटिक चल रहा है। कैसा चल रहा है? एक एक चीज को चेक करते चल रहा है। देखिए चलो, क्या है भाई? अल्लाह हो, अल्लाह क्या है बताइए मुझे? मारिफा की नकीरा है, मुब्तदा मारिफा है। पहले बोलो मारिफा की नकीरा है। मारिफा है। मारिफा एक क्वालिटी मिल गई मारिफा। और मुब्तदा होने की दूसरी क्वालिटी क्या चाहिए? रफा होना। अब नहीं चलता कि मुदाफ बना रहे, मुदाफ बनाने के लिए ये दो चीजें मिलना जरूरी। क्या क्या मिलना है? मारिफा और रफा। पेश यानी रफा, हल दिख रहा तो मारिफा। तो यहाँ पे इसको लिख दो, इन्हें बन गया, बोलो मुब्तदा। मुजाफ मुब्तदा, मुदाफ नहीं। मुब्तदा जुमला इस्मिया में दो टुकड़े होते हैं, एक का नाम रहता मुब्तदा, दूसरे का नाम है खबर। तो मुब्तदा बन गया। अब यहां से यहां तक का क्या है भाई? ये पूरा मिलकर दो मुरक्कबात। एक मुरक्कब ये है और दूसरा मुरक्कब ये है। देख रहे ऐसा कंबाइन हो रहे दोनों भी। तो अल्लाह के बाद में ये पूरे दो मुरक्कब आ रहे, एक डब्बे में डाल दो इसको, ये सब मिलकर क्या बन रहे हैं? खबर बन रही। अल्लाह क्या बन रहे हैं? लफ्ज जलाला मुब्तदा है, बाकी का हिस्सा खबर बन रही है, और ये बैठे हैं खबर की जगह पर। ये पूरे के पूरे दरअसल अगर हमने कैलकुलेट करें तो इसको बोलते हैं, अभी नया लफ्ज बता रहे हैं, तकदीरन। बोलो एस्टिमेटेड, एस्टिमेट कर रहे हैं भाई। महल्ला कब बोलता? मबनी का महल्ला। बोले मबनी महल्ला, और अगर मबनी नहीं है, ये मबनी नहीं है, तो क्या बोलेंगे? तकदीरन। हिसाब लगा रहे हम। क्या हिसाब लगा रहे? किसके कुर्सी पर बैठा? खबर के कुर्सी पर बैठा। तो क्या बन गया? नकीरा। नकीरा का हुक्म पे है। तो मारिफा जब नकीरा से मिलता है तो जुमला इसमें बनता है। तो बोलो खबर, देखो मालिकी यौम से मिलकर मुजाफ मुजाफ इलैहि बना, और यौम दीन से मिलकर मुजाफ मुजाफ इलैहि बना। दो मुरक्कबात मिलकर खबर बने, और दोनों मिलकर मुब्तदा से मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया। ओके, बोलिए जरा कैसा बोला मैंने? मालिकी मिला यौम से, मुजाफ मुजाफ इलैहि हो गया, और यौम मिला दीन से, ये मुजाफ से बने। ये दोनों सब मिलकर पूरा पूरा एक सेट बन गया। क्या मायने हो जाएंगे? बोलो जजा के दिन का मालिक, ये एक हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे? ये है अपना मुब्तदा, तो बोलेंगे मुब्तदा अपनी खबर से मिल गया और जुमला इस्मिया बन गया। ओके, आया समझ में? हाँ, ये है उसका एक्सप्लेन करने का तरीका, एक्सप्लेन करना।
अब नहीं, यहाँ पे बहुत चीजें है ना, अब कुछ मत देखो, पूरा का पूरा ये सेट क्या बन गया, नकीरा। ओके, क्योंकि कहाँ बैठा है, खबर की कुर्सी बैठ गए पूरा मिलके, ये 1 2 3 लोग मिलकर एक जान बनकर कुर्सी पे बैठे खबर की, और खबर नकीरा होती है, इसलिए ये तवे है नकीरा के खबर की, और ये है मारिफा, ये है नकीरा, इसलिए जुमला इसमें। मेरा माइक बंद रखिए भाई, ठोकना ठाकना सब यही चल रहा आपका, क्या बोलूं मैं आपको। हाँ चलिए भाई, आप कौन पढ़ेंगे जरा पढ़ाई बताइए, मेरे पास कुल मिला के 12 मिनट बाकी है। हाज़ल किताबो जदीदुन, हाँ हाज़ल किताबु, हाजा मुब्तदा है, अल किताबु खबर है। मुज़ाफ खबर है। खबर कैसा होती बेटे वो, ये इसमें नकीरा नहीं है, तनवीन नहीं है। रुक जाओ, तनवीन रुक जाओ, हाजा कटिंग निकालो। हाजा, हाजा मैंने ये तो पहले बोलिए हाजा क्या है, बताओ तक बोलो। हाजा क्या है बताओ मेरे को। हाजा हाजा ये क्या, हाँ ये क्या है, नहीं ये ना वो, पहले बोलो ये कौन है, मुब्तदा है, काय का मुक्तदा जी, इसमें इशारा है इसमें ये। इशारा है। आप रुकिए, इसमें इशारा की क्या खासूसियत होती है, इसमें इशारा हमेशा मारिफा होता है, और इसमें इशारा एरब के मामले में मबनी होता है। अब ये हाजा क्योंकि यहाँ बैठा है, मुब्तदा की कुर्सी पे बैठा है, या छोड़ो अभी क्या है, हाजा है ना, क्या है ना, मारिफा है, बोलो मारिफा है, मारिफा है। मारिफा। और ये कौन है भाई, ये भी मारिफा है, तो मारिफा से मारिफा मिले तो क्या होता है जी, जुमला बनता क्या, जुमला मुब्तदा बनता, जुमला नहीं बनता, मुब्तदा बनता, मुरक्कब बनता, मुरक्कब बनता, मुरक्कब बनते। अभी आप एक आदमी को मैं समझाता हूँ, आप मैं समझाने दीजिए। देखो बेटा, मुब्तदा के चक्कर में अभी क्यों पढ़ रहे हैं आप, पहले इसको साफ करो, ये क्या है, ये हाजा है और किताब, तो ये दोनों मिलकर बनेगा ये इशारा, रुको मुदाफ खुदा कुछ नहीं है, ये बनेगा मुशारुन इलैहि, और ये नहीं है मुदाफ इलैहि है ही नहीं इसमें कोई भी, मुदाफ इलैहि कहां से आया, मुरक्कब इशारी है ये किताब, इसका मतलब क्या होगा, ये किताब। अब यहाँ आ जाओ, जदीदुन मारिफा की नकीरा है, तो यहाँ पर है लगाओ, ये पूरा मुक्तदा बन गया, आपका प्यारा मुक्तदा बन गया, ये दोनों मिलकर मुक्तदा बना, इसके अंदर मुज़ाफ मुज़ाफ अलैहि का कोई लेना देना नहीं, ये किताब है नहीं, ये किताब है नहीं, ये किताब है नहीं। देखो मुज़ाफ होने के लिए क्या चाहिए आपको, मुज़ाफ होने के लिए इसम चाहिए जो अखफ किया हुआ है, और मुज़ाफ इलैहि के नीचे आपको क्या चाहिए, ज़ेर चाहिए, तो वो तो है ही नहीं, आपने कैसा, आप कैसा बनाए उसको, क्या बना रहे थे आप, चलो ठीक है, अब ये हो गया। चलिए और कोई बच्ची जो अभी उनकी मदद करना चाह रही थी वो बोलो, ये क्या है, पढ़िए ये क्या है, लिखा हुआ, हाँ हाजा किताबु ज़ैदिन, हाँ बता बेटे, हाजा हाजा मुब्तदा है, इसमें तो इशारा भाई है। मुब्तदा कैसा बन गया, उन्हें मुब्तदा होने के लिए क्या खासियत होना चाहिए,
उसको क्या कहते हैं, उसको इसम होना चाहिए ओके और आगे हालत रफा में होना चाहिए और मबनी है ये। और उन्हें होना क्या चाहिए, है नहीं, बोलो मुझे क्या होना चाहिए बताओ। मुब्तदा होने के लिए दो क्वालिटीज क्या होना चाहिए, सबसे पहला ये डिसाइड करो। मुब्तदा होने के लिए ये पहली मारिफा क्वालिटी हाँ मारिफा होना जरूरी है, डेफिनेट होना जरूरी है। डेफिनेट और दूसरा क्या होना चाहिए, रफा होना चाहिए। हालत में होना चाहिए। अब इसके पास में कोई इशारा तो है, इसके पास में कोई चेहरा है नहीं, न मबनी है, मबनी है। ठीक है। क्योंकि अब इन्हें मुजाफ बन रहा है इसलिए इसको रफा हम लोग, रफा हाँ बोलिए, जगह के मुताबिक महल्लन रफा है और मारिफा है, इसलिए ये मुदाफ है। यहां तक हो गया जगह क्लास, यहां जगह तक हो के गया। मोहल्लिक रफा है, हाँ मोहल्लिक ने महल्लन बोलो, हल्लन रफा है। महल बोल दो जगह, मोहल्लन बोल दो अकॉर्डिंग टू द प्लेस। अकॉर्डिंग टू अब ये पढ़ो, किताबु ज़ैदिन, किताबु ज़ैदिन, ये मुदाफ ये मुदाफ क्या है, इलैहि है, क्यों है ये मुदाफ क्यों है। क्योंकि ये अखफ किया हुआ है और उसके बाद जो इसम आ रहा है वो जेर में है। माशाल्लाह, तो दोनों मिलकर मायने बोलो, जैद की किताब, पूरा मिलकर ये पढ़ो। है जैद की किताब। माशाल्लाह, तो एक मुरक्कब किताब और मुरक्कब ज़ैदिन मिलकर मुजाफ मुजाफ इलैहि होकर मुदाफ मुदाफ ये इलैहि। खबर बनकर इन्हों मिल रहे मुब्तदा से और ये बन रहा है जुमला इस्मिया खबरिया। जुमला इस्मिया खबरिया। ओके भाई, जी सर। आप लोग जरा भी मत घबराइए, नहीं आया तो कोई मुश्किल नहीं है, हम बहुत बार करेंगे इसको। चलिए अब ये पढ़िए क्या नंबर, कोई और बच्चे आए, कब सब पढ़िए। यहाँ आपको ना कुछ भी नहीं रखा, आपको ना वर्ड नहीं आती उख्तुन, हाँ भाई क्या आएगा, अल उख्तु या उख्तुन, हाँ वो ये खास किया हुआ है। हाँ ये 5 ऐसे इसम है, मैं उसको सिखाऊंगा। अखो फमो हमो ये नामा है, अबू, इनका अलग तरीके होगा। तो क्या होगा इसको, तो ये क्या था, उख्तुन था, तो अखफ करके क्या बना, अखू। ये याद रखो सब लोग, मुदाफ मुदाफ इलैहि। माशाल्लाह, हामिद का, हाँ बोलो हामिद का कौन है बताओ, हामिद का भाई, चलो हामिद का भाई, हाँ ये दोनों मिलकर मुब्तदा बन गए, हामिद का भाई बन गया मुब्तदा और सादिकुन सच्चा, इसलिए जुमला इस्मिया खबरिया बन गया। समझे, एक नई चीज मिली आपको। अच्छा अब यहाँ पे अबू की जगह अबू लगा दो, अबू, हाँ हामिद का बाप, हाँ हाँ बोलो फामू, हामिद का ससुरा, आ गया समझ। हाँ मैं अभी कुछ मत करूँ, पढ़ाइए अभी आप कुछ भी, तुम जो है ना उसको एस्टिमेट करो मत, कम तो नुकसान कुछ भी नहीं, वो पढ़ाऊंगा मैं। इतना याद रखो, आखो अबू हमो फमो, ठीक है। चलिए हाँ भाई आप कौन आएगा, चलिए जान दो, आप पढ़ सकते तो ये पढ़ाई तक करिए। हाँ भाई लड़कियां पढ़ेंगे कोई, चलो पढ़ो जल्दी से। तिलका मिरवत अल मिरवतु कदीमतुन, आराम से पढ़ो, तिल कल, तिल तिलकल कल मिरवाहतुन, मिरवतुन मैंने लिखा है ना मिरवाहतुन, किसी लिखा है हमने,
گھر میں کوئی چیزیں بتایا تھا میں نے, فین بتایا تھا, کھڑکی بتایا تھا. ہاں کھڑکی پڑھو. کھڑکی ہے سر یہ. ہاں وہ سر کھڑکی پنکھا ہے سر. پنکھا ہے. اور کھڑکی کے لیے کیا ہے, نکالو ڈھونڈ کے نکالو. قدیم پرانا. ہاں پڑھو. وہ پنکھا بولو, پنکھا نہیں پنکھی, کیونکہ مونس ہے, تیل کا مونس ہے. وہ پنکھی ہے پرانی. قدیم وہ پنکھی ہے پرانی. تو عربی میں پنکھے کو پنکھی کرتے ہیں. آیا سمجھ میں؟ چلو لاسٹ یہ پڑھیے بھائی. اللہ نور السماوات والارض. ارض پڑھو, اور پڑھے گا سب سے پڑھ لو. سماواتی اللہ پڑھو نور پڑھو. السماواتی اللہ ہو, اللہ ہو یہ معرفہ ہے, رفع ہے, اس لیے مبتدا ہے. ٹھیک ہے بھائی. جی یہ اخف کیا ہوا, نور تھا, النور یا نورو, یہ اخف ہو گیا. مضاف ہے. سماوات یعنی آسمانوں کا نور, آسمانوں کا نور, مضاف مضاف الیہ. اور مضاف واو ہے الیہ. آپ کا, آسمانوں کا زمین کا نور. آسمان کا اور زمین کا نور کون ہے؟ اللہ ہے, آسمانوں اور زمین کا نور. آگے سمجھ میں جی سر. نور السماوات والارض پورا مل کے خبر. پوری مل کے خبر ہے. ماشاء اللہ. آ جاتا. دیکھیے مشکل, سب سے مشکل ہے جملہ اسمیہ. جملہ اس میں بہت لمبا ہے. آ گئے ہم لوگ. اب ایک ہفتہ پورا ہم کو جملہ اسمیہ میں انا وغیرہ لگانا سیکنڈ ہے. انا وغیرہ سب ٹاپک پورے ایڈوانس اسٹرکچر سے ہوئے. سر عرضی زمین کو بولتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ کل تقریباً 7 لوگوں نے پڑھے تھے. آج اس کے آگے جن لوگوں نے کل نہیں پڑھے, آج باقی کے دوسرے لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ. اور اس کے پہلے کل کی یہ جو آیت ہے, ذالک عالم الغیب والشہادۃ العزیز الرحیم, کل اس کا ہم نے اجرا کیے تھے, جس کے اندر عالم الغیبی ایک مرکب ملا تھا, یعنی کہ مضاف اور مضاف الیہ, اور واو کے ساتھ واو حرف عطف ہے. الشہادتی یہ مضاف الیہ سیکنڈ یعنی کہ ثانی, یہ مضاف ہے. الغیبی مضاف الیہ ہے, اور واو حرف عطف کے ساتھ الشہادتی پھر سے مضاف الیہ آ گیا. اور اس کے بعد آ گیا العزیز الرحیم. تو اس کا ہم نے تمام لوگوں کا DING نکالے تھے, تو مرکبات یہ ملا تھا. اور دوسرا العزیز الرحیم, یہ دونوں کا DING نکالے تھے. معرفہ ہے, اعرابی اعتبار سے حالت رفع ہے, اور مذکر ہے اور واحد ہے. اسی طریقے سے الرحیم بھی معرفہ ہے, اعرابی اعتبار سے حالت رفع ہے, اور واحد ہے, مذکر ہے. اس کا DING یہ دونوں کا, اور دونوں بھی ملے تھے صفت. یہ بھی صفت ہے, یہ بھی صفت ہے. تو کل ایک چھوٹی سی غلطی ہوئی تھی کہ یہ دونوں صفات جو ہے میں نے بتایا تھا کہ عالموں کے ہیں. یہ دونوں بھی صفات, یہ صفات اور یہ صفات, عالم الغیبی والشہادتی, یہ ایک مرکب بن کے ایک صفت بن رہی, مرکب اضافی بن کے پلس یہ ہے صفت عالم یعنی کہ جاننے والا. تو عالم الغیبی والشہادتی یعنی کہ غیب کا اور ظاہر کا جاننے والا, تو یہ بھی صفت ہے. العزیز بھی صفت ہے, الرحیم بھی صفت ہے. یہ تینوں صفات ہے ذالکہ کے.
आलिमों की सिफत नहीं है, ये तीनों भी सिफात जो है ये पूरा ये मुरक्कब इजाफी और सिफात मिलके मुरक्कब तौसीफी बन रहा, और ये पूरी हो गई सिफत और जाली का हो गया मौसूफ। यानी कि वो है गैब का और हाजिर का जानने वाला, बुलंद मर्तबे वाला और रहम करने वाला। तो ये कल एक छोटी सी मिस्टेक थी, ये आज उसको रिपीट करके आप लोगों के सामने बता दिया मैंने। सर इसको फिर एक बार लिख दीजिए। अच्छा जी, नहीं असल में हमको सिर्फ DING वो ग्रामर देखना है। मायने के लिए मैंने खास तौर पे यहाँ पे ये सूरत का नाम और आयत नंबर लिख के लाया। इसके अंदर अगर तर्जुमा और तफसीर दोनों भी आप पढ़ ले सकते हो, क्योंकि छोटी सी आयत का तर्जुमा निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इस वजह से हम सिर्फ ग्रामर पढ़ेंगे उसका। तो चलिए आज बताइए कौन कौन लोग पढ़ने वाले हैं, कौन कौन तैयार है पढ़ने के लिए? सर मैं। जी चलिए आप पढ़ेंगे बाकी लोग खामोश हैं। और बाकी तमाम लोग खामोश रहेंगे। ये पढ़ना है आज, कल हमने वहां तक पढ़ लिए थे। ये सूरह बय्यिना की आयत नंबर 8 है, आज ये आयत आप पढ़ेंगे। चलिए शुरू कीजिए। जज़ाउहुम इंद रब्बिहिम जन्नातु अदनिन। जी जज़ाउ ये जज़ा इसमें है क्या? क्या ये फेल है? पता नहीं। फेल, फेल कैसा पहचाने आपने? क्योंकि जज़ा में वो जज़ा के मायने को बदला। हाँ जज़ा बदला है ना, जज़ा का मतलब हाँ बदला है। अगर हम बोलेंगे बदला दिया हाँ तो हरकत मतलब आ जा रही, तो वो फेल होता। अच्छा। यहाँ पे सिर्फ है बदला, रिवार्ड, तो इसम है। तो ये है इस्म। ठीक है। अब इस्म है तो DING निकालना है। चलिए जी डेफिनेट है डेफिनेट है और ये क्या आता है? मारिफा है, रफा हालत है, हालत रफा है, सिंगुलर है सिंगुलर है, और मैस्कुलाइन है। मस्कुलाइन। माशाल्लाह। चलिए अब उसके बाद है होम। होम क्या है? हुम ये है, क्या कहते हैं इसको? जमीर है। जमीर है, प्रोनाउन है। और जमीर है तो कौन सी जमीर है? ये मुत्तसिल है यहाँ। मुत्तसिल जमीर है। माशाल्लाह। अब मुत्तसिल जमीर है तो मारिफा है या नकीर आएंगी? ये मारिफा आएगी। मारिफा आएंगे। अब एराबी एतबार से इसकी हालत कौन सी है? रफा है, नसब है या जर है? रफा है। रफा है। नहीं ये नसब होती है ना मुत्तसिल। हाँ देखिए, आपने बोले जमीर है यानी कि प्रोनाउन है, और आपने एक लफ्ज और ऐड किए मुत्तसिल है यानी कि अटैच है। तो अटैच है तो किसके साथ अटैच है? ऑब्जेक्ट है, नसब है सर। इस्म के साथ अटैच है। इस्म से अटैच है। इस्म के साथ अटैच हुई तो हालत जर में जाती। अच्छा। वर्ब के साथ अटैच हुई तो हालत नसब में जाती, तब ऑब्जेक्ट बनता। ओके। हाँ अभी इसकी एराबी हालत है हालत जर। जर। जी। और फिर ये वाहिद है, तस्निया है, जमा है? ये जमा है। जमा है। मुजक्कर है या मुअन्नस है? मुजक्कर है सर, मुजक्कर है। मुजक्कर है। चलिए दोनों का DING निकल गया। अब ये मारिफा है। अच्छा ये जो जज़ाउ आपने बताया मारिफा है, तो ये क्यों मारिफा है? इसकी पहचान क्या है मारिफा की? क्योंकि सर अगर तनवीन होती तो नकीरा होता। नकीरा होता, और अलिफ लाम होता तो मारिफा होता। यहाँ पे तो दोनों भी नहीं है। हाँ लेकिन ये अखफ किया हुआ है ना। अखफ किया हुआ है तो ये बन सकता क्या इसमें? मुजाफ। जी अखफ किया हुआ है इसमें मुजाफ बनेगा। अब मुजाफ कंफर्म कब होता?
जब उसके आगे का इसम जेर होता है, हाँ, जरी हालत हालत में। जर में होता। तो ये दोनों है क्या? देखो ये अखफ किया हुआ इसम है और उसके बाद वाला हालत जर में है क्या? हाँ, हालत जर में। आपने बताया ना इसम के बाद अगर मुत्तसिल हाँ, आएगा तो जर में तो रहेगा। हालत जर में। तो अब ये दोनों मिलके कोई एक फ्रेज बन रही क्या? हाँ, ये मुजाफ मुजाफ इलैहि बन रहा है, मुजाफ मुजाफ इलैहि। इसका नाम है मुरक्कब मुरक्कब इजाफी। इजाफी। अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। इंदा। इंदा, इंदा प्रेपोजिशन है ना? हाँ, ये एक ज़र्फ है, एडवर्ब, और ये प्रीपोजिशन के जैसा ही काम करेगा। तो हम इसको आज पकड़ के चलेंगे हरफे जर। जर। अब उसके बाद क्या है? रब्बीहिम, रब्बी। रब्बीहिम। जी, तो रब्बी भी मारिफा इसम है, रब्बी मारिफा है। क्यों मारिफा है? क्योंकि नाम है ना सर ये। हाँ, इसमें नाम है। नाम तो नकिरा भी हो सकता, नाउन इनडेफिनेट भी हो सकता, डेफिनेट भी हो सकता। हाँ, तो तो ये क्यों डेफिनेट है? इसमें अलम है ना? नहीं, ये भी अखफ किया हुआ है इसमें। ना ये अलिफ भी लाम है और ना तनवीन है। हाँ, तो ये हो गया इसमें मुजाफ। चलिए इसकी एराबी हालत क्या है? ये जर में है। हालत जर में है। वाहिद है, तस्निया है, जमा है? वाहिद है, वाहिद है। मुजक्कर है या मुअन्नस है? मुज़क्कर है। मुजक्कर है। ठीक है, अब उसके बाद क्या आया? हिम। हिम आया। हाँ, हिम क्या है? ये भी ये जमीर है मुत्तसिल। जमीर है, मुत्तसिल जमीर है। हाँ, मारिफा है। जी। एराबी एतबार से क्या है? हालत हालत जर है, जर है। हालत जर है। और वाहिद है, तस्निया है, जमा है? हिम जमा है सर। जमा है। मुजक्कर है या मुअन्नस है? मुज़क्कर है। मुजक्कर है। चलिए अब ये रब्बिहिम, ये दोनों मिलके कोई मुरक्कब बन रहा क्या? रब्बी हिम, हाँ हाँ सर, ये भी मुज़ाफ मुज़ाफ इलैहि बन सकता है ना? ये भी मुजाफ मुजाफ कंफर्म है। ये रब्बी अखफ किया हुआ इसमें है अकफ किया हुआ और इसम उसके है बाद और वाला हालत जर में आया। तो ये जी सर। कंफर्म हो गया, मुजाफ मुजाफ इलैहि। ये भी हो गया मुरक्कब इजाफी। जाती। चलिए आगे बढ़ेंगे। जन्नातु अदनिन। जन्नतु अदनिन। जन्नातु क्या है? जन्नतु ये इसम है। इसम है। मारिफा या नकीरा? ये मारिफा है, क्यों मारिफा है? अकफ किया हुआ है। अखफ किया हुआ है। जी। उसके बाद हालत के एतबार से रफा है, नसब है, जर है? तू रफा है सर। रफा है। वाहिद है, तस्निया है, जमा है? जमा है। जमा है। मुजक्कर है कि मुअन्नस है? मुअन्नस है। मुअन्नस है। ठीक है, उसके बाद अदनिन। अदनिन क्या है? अदनिन ये है क्या कहते हैं उसको? अदनिन, अदनिन का मतलब क्या है सर? नाउन है। नहीं, अपने को सिर्फ पहचानना है, मतलब नहीं। इसम नाउन है, है। फेल है कि हर्फ है? हाँ। हाँ, इसम है। हाँ। नकीरा है। मारिफा है या नकीरा है? नकीरा है। नकीरा है। एराबी एतबार से हालत कौन सी है? जर है। हालत जर है। उसके बाद वाहिद है, तस्निया, जमा? वाहिद है। वाहिद है। मुजक्कर है कि मुअन्नस है? मुज़क्कर है। मुजक्कर है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो सब इसम का DING निकाल लिए। और जी। अब ये दोनों को देखो, ये दोनों कोई मुरक्कब बन रहे क्या? जन्नात व हाँ, अदनिन। ये भी बन सकता है मुदाफ मुदाफ इलैहि। मुजाफ मुजाफ इलैहि। तो ये बन गया मुरक्कब इजाफी। इजाफी। अब देखिए, शुरुआत से हम आए, हर एक का DING निकाल दिए। जज़ाउहुम, ये मुरक्कब इजाफी मिल गया। रब्बिहिम मुरक्कब इजाफी मिल गया। जन्नातु अदनिन मुरक्कब इजाफी मिल गया। और कोई मुरक्कब है क्या इसके अंदर छुपा हुआ? इंदा रब्बिहिम। इंदा रब्बिहिम। इंदा रब्बिहिम। इंदा
रब्बिहिम। इंदा ने ज़र्फ है, हरफ जर की तरह काम किया और इसको लेके आया हालत जर में, तो इंदा रब्बी ये दोनों मिलके बन गया मुरक्कब जारी, और फिर मुजाफ मुजाफ इलैहि ये बाकी के इसमें। अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा, आपने अच्छा पहचाने। अभी आप ये आयत नंबर सूरह बय्यिना की आयत नंबर 8 है, अब इस ये लिख लीजिए, नोट करिए, और इसको कुरान में देख के इसका तर्जुमा और तफसीर दोनों भी पढ़ लीजिए। जी सर, इंशाअल्लाह। जो है अदनिन अदनिन की वजह से। हाँ, ये जो असल में क्या है, दो इसम से मिलके बना हुआ है, दो लफ्ज आपस में मिलके बना हुआ है। तो जब तक हम एक इसम की बात करेंगे जन्नातु की, अदनिन की बात नहीं करेंगे। अगर जन्नातु की बात करेंगे तो ये मारिफा है, क्योंकि ये अखफ किया हुआ है। इसमें मारिफा की 7 किस्मों में है, इसमें मुजाफ और इसमें मुनादा। तो यहां तक के जन्नातु तक ये मारिफा है। अब इसके साथ में जो मुजाफ इलैहि आ रहा, तो ये अगर मारिफा होता तो ये दोनों मिलके पूरा मुरक्कब, पूरी फ्रेज मारिफा हो जाती। अब इसका एक का खत्म हो जाता, ये दोनों मिलके मारिफा हो जाते। अब यहाँ पे तनवीन है, नकीरा है, तो दोनों मिलके नकीरा बन गए। खाली एक को देखेंगे तो मारिफा है। हाँ हाँ, दोनों मिलके नकीरा बन गए। चलिए, अब नेक्स्ट कौन पढ़ने वाले हैं? उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफलिहून। जी सर, आयशा पर। पढ़ना कैसे? कल आपने पढ़े थे क्या? कल जो पढ़े थे वो नहीं पढ़ेंगे। ओके जी, और कोई है पढ़ने वाले? कोई नहीं है? हाँ पढ़ो सर, मैं पढ़ो सलीम। जी 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 सर, पढ़िए। उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। उलाइका, हर एक लफ्ज को पहले अलग अलग करना है और उसका DING पहचानना है और मुरक्कबात को पहचानना है। तो उलाइका क्या है? उलाइका मारिफा है या नकीरा है? हाँ, डॉक्टर साहब आप ही कर दीजिए। उलाइका इसमें इशारा सबसे पहले देख लिए हमने मारिफा है। अब मारिफा है तो क्यों मारिफा है? क्योंकि इसमें इशारा है। अब इसमें इशारा करीब के लिए है या दूर के लिए? लिल बाईद के लिए है। और ये मुजक्कर है या मुअन्नस है? दोनों के लिए है, मुजक्कर और मुअन्नस। हाँ, इसकी एराबी हालत क्या है? मबनी। मबनी, हाँ, फिलहाल मबनी। उसके बाद है अला हुदन। अला हरफ जर है, और उसके बाद हाँ जी, हाँ हुदन हुदन, ये भी मबनी है। तो ये इसम है, तो पहले ये देखना है मारिफा है कि नकीरा है? नकीरा है। उसके बाद एराबी हालत क्या है? हाँ, यहाँ पे मबनी है, लेकिन लफ्जन मबनी है, लेकिन आला हमें जाहिर कर रहा है कि ये जर है, हालत जर आ गया। उसके बाद वाहिद है, तस्निया है, जमा है? वाहिद है। मुजक्कर है या मुअन्नस? मुजक्कर है। अब ये दोनों मिलके कोई फ्रेज बन रही, मुरक्कबे जारी, जिसमें पहला हो गया जार और दूसरा मजरूर, मुरक्कबी जारी। अब उसके बाद है मिन।
حرف جر. اس کے بعد ہے ربی. اس میں نہیں اسم ہے معرفہ ہے. اب پہچاننا ہے کیوں معرفہ ہے. اخف کیا ہوا ہے جی ہاں. اب اس کی اعرابی حالت کیا ہے. مین کی وجہ سے جر میں ہے. واحد ہے تثنیہ ہے جمع ہے. واحد ہے اور مذکر ہے. ہاں اب یہ دونوں مل کے من اور ربی دونوں مل کے مرکب جاری بن گیا. اب اس کے بعد ہے پھر اس کے بعد ہے ہم. یہ ضمیر ہے. ضمیر معرفہ میں ہوتی ہاں حالت جر ہے جمع ہے اور مذکر ہے. ہاں یہ دونوں مل کے ایک مرکب بن گیا مرکب اضافی جس میں پہلا ہے مضاف اور دوسرا ہے مضاف الیہ. اب اس کے بعد ہے واو. واو حرف عطف ہے. ہاں اب یہ دوسرا اب یہاں سے چینج ہو جائے. پھر اولئک اس میں اشارہ معرفہ ہے مذکر مؤنث دونوں کے لیے ہے اور مبنی ہے. سر ہاں یہ ربہم جو ہے یہ ہاں تو مین کے ساتھ مل کر کے مرکب جاری ہوا نا. پھر ہاں جی ربہم یہ مرکب اضافی. ہاں یہ دو مرکب آپس میں مل گئے. من ربی مرکب جاری ہے ربہم مرکب اضافی ہے یعنی کہ ڈبے کے اندر ڈبہ ہے ڈبے میں ڈبہ. ہاں اولئک یہ ہم نے پہچان لیا. اس میں اشارہ ہے للبعید ہے مذکر مؤنث دونوں کے لیے ہے اعرابی اعتبار سے مبنی ہے. پھر آیا ہم ضمیر ہے. ہاں ضمیر معرفہ ہے. اب یہ ضمیر کون سی ہے متصل ہے کہ منفصل ہے. نہیں منفصل ہے. ہاں یہ اصل میں ہے منفصل. وہ اسم کے ساتھ لگی ہوئی تھی. اب یہاں پہ یہ جو ہے اس میں اشارہ الگ ہے. ہاں وہ الگ ہے. یہ ہاں یہ اٹیچ ہو کے نہیں آئے والی ہے یہ الگ آئے والی ہے اس لیے یہ ہے ضمیر منفصل. منفصل. اس کے بعد مبنی ہے. نہیں یہ مبنی ہے اور رفع حالت میں ہے جی. اس کے بعد یہ ہے مذکر. ٹھیک ہے. اس کے بعد جمع ہے. مفلحون المفلحون. ہاں معرفہ ہے معرب باللام الف لام کے ساتھ. جمع ہے حالت رفع میں ہے. ہو گیا مذکر ہے. الحمدللہ یہ تمام ہم نے DING ہر ایک اسم کا نکال لیا. اب اس میں سے جو مرکبات بن رہے تھے وہ اعلیٰ ہدن مرکب جاری من ربی مرکب جاری ربہم مرکب اضافی. الگ الگ پڑتا ہے اور ان لوگوں کے اوپر اگر بتانا ہو تو ملا کے نہیں اصل میں یہ جملہ اسمیہ جو ہے اس کی ایک الگ خصوصیت والا جملہ ہے. یہ جملہ اسمیہ ہے. اصل میں اگر ہم یہاں پہ ہم نکال دیے تو اولئک یہ نکرہ ہو جائیں گا مفلحون. وہ لوگ ہیں فلاح پانے والے. اور اس کو کنفرم کرنا ہے ایمفسائز کرنا ہے کہ وہی لوگ ہیں کامیاب. تو اس کے بیچ میں اس کو معرفہ کر کے بیچ میں ایک ضمیر لائی جاتی اور اس کو بولتے ضمیر فصل. وہی لوگ ہیں کامیاب فلاح پانے والے. ٹھیک ہے. ہدن کیا ہے سر. ہدن تھوڑا ایکسپلین کیجیے نا پلیز. ہدن یہ اسم ہے. نہیں مذکر ہے کہ مؤنث ہے.
یہ مذکر ہے. سر وہ یہ ہاں اصل میں جو ہے یہ ہے ایسا ہدا. ہاں تو سر وہ ہدا ہے یہ ہدا. یہ الف مقصورہ کے ساتھ آ رہا. تو تو بھائی یہ دیجیے پین. ہاں سر ہاں الف مقصور آیا تو مونس ہوتا نا سر. ہاں الف مقصورہ آیا تو مونس ہوتا. لیکن کچھ ایسے اسم ہیں ہاں جو سمائی ہے. اچھا ٹھیک ہے. تو جی جی یہ سمائی ہے. سمائے ہاں. اور اگر ہم اس کو لفظاً دیکھیں گے تو یہ مونس اسم ہے. ہاں مونس ہدا اور ہدایتن یہ دو بھی اس کے بنتے. ایک ہدا یہ بھی ہدایت ہے, ہدایتن یہ بھی ہدایت ہے. تو یہ ہدا جو ہے لکھنے میں پڑھنے میں تھوڑا سا مشکل ہوتی, اس وجہ سے یہ الف مقصورہ کو نکال کے اس کو تنوین دے دیے گا. خالی اتنا ہی سمجھو, آگے چل کے جب ہم تعلیلات پڑھیں گے جہاں پڑھنے میں دقت ہو رہی اس کو آسان کرنا, اس کا نام ہے تعلیلات. تو یہ ہے ہدایون, ہدین, ہدین. ہاں تو تینوں بھی پڑھنے میں مشکل ہو رہا ہے, اس لیے اس کو کر دیے ہدن, ہدن. ہاں ہدن. بس اتنا یاد رکھیے. چلیے اب کون پڑھنے والے ہیں؟ من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال. آن لائن میں ہے کوئی پڑھنے والے؟ جی سر عائشہ. آپ دوسروں کو موقع دیجیے پلیز. کل آپ پڑھے من کان عدوا للہ وملائکتہ کل ورسلہ. آپ بھی کل پڑھے, آپ بھی کل پڑھ چکے. ایم ایس پڑھیے. من جی سر. ہاں من کان عدو للہ. من اسم ہے, اس میں موصولہ ہے. من اس میں موصولہ ہے. کانا فیل ہے. آپ اس سے پہلے بتائے تھے کانا اور انا دونوں اپنے آنے والے اسم کو نصب دے دیتے ہیں, اس لیے ادون نصب میں چلا گیا کانا کی وجہ سے. ادبن, ادبن. ادون. ہاں تو کانا فیل ہے تو خیر اس کے بارے میں چھوڑ دیں گے, ہم نے ابھی تک فیل پڑھے نہیں. اب ہم پڑھیں گے ادبن کے بارے میں. ادبن کا ڈی آئی این جی نکالنا ہے. معرفہ ہے یا نکیرہ ہے؟ نکیرہ. نکیرہ ہے جی. اس کے بعد اعرابی اعتبار سے حالت کیا ہے؟ نصب. نصب. نصب ہے. واحد ہے. واحد ہے اور مذکر ہے. مذکر ہے. اس کے بعد ہے للہ میں للہ. لام ذیلی حرف جر ہے. لام ذیلی حرف جر ہے. اور اس کے بعد اور اللہ اس میں علم اس ہے, میں علم, معرفہ ہے. اس میں علم معرفہ ہے. اعرابی حالت کیا جری ہے؟ حالت جر میں ہے. جری حالت ہے. واحد ہے اور مذکر ہے. واحد ہے اور مذکر ہے. تو کوئی مذکر. مرکب بن رہا کیا؟ جی ہر مرکب جاری بن رہا ہے کیونکہ وہ حرف جر کے ساتھ تو اٹینشن. ہاں حرف جر کے ساتھ اس میں مرکب مجرور آ گیا تو یہ بن گیا مرکب جاری. جاری. ماشاءاللہ. اب اس کے بعد واو حرف عطف ہے. واو حرف عطف ہے. پھر ہے وملائکتہ. ملائکتی اخف کیا ہوا اسم ہے. اخف کیا ہوا اس میں ماشاءاللہ. اور اس کی اعرابی حالت کیا ہے؟ جر میں ہے. حالت جر میں ہے. واحد ہے, تسنیہ ہے, جمع ہے. جمع مکسر ہے. جمع مکسر ہے. مذکر ہے کہ مؤنث ہے؟
मुज़क्कर है। पक्का मुज़क्कर है? मोनस है। मुअन्नस उसके कहाँ साथ आया ना अटैच ज़मीर बात? है। हाँ, उसके साथ क्या आया? जमीर। अटैच ज़मीर। हाँ, अटैच जमीर मुत्तसिल अटैच है, मुत्तसिल। ज़मीर। और एराबी एतबार से क्या है? जर में है। हालत है। बाकी दूसरे कोई नहीं बोलेंगे। वाहिद है, तस्निया है, जमा है? वा, वाहिद है। वाहिद है। मुज़क्कर है कि मुअन्नस है? मुज़क्कर है। मुज़क्कर है। वो हाँ, अब ये दोनों मिलके कोई मुरक्कब बन रहा क्या? जी, ये मुज़ाफ मुज़ाफ इलैहि हुआ ना। मुज़ाफ मुज़ाफ इलैहि, मुरक्कब मुरक्कब अज़ाफ़ी। इजाफी। माशाल्लाह। उसके बाद है वाह। वाव। वाव है, हर्फ अत्फ है वापस। वाव हर्फ अत्फ है। उसके बाद है वरुसुली। ये भी अखफ किया हुआ इसमें है। ये भी अखफ किया हुआ है। हालत क्या है इसकी एराबी? जर है। हालत जर है। जर है। वाहिद है, तस्निया जमा है? जमा जमा है ये भी। जमा है। जमा मुकस्सर है कि जमा सालिम है? जमा मुकस्सर है। जमा मुकस्सर है, माशाल्लाह। और मुज़क्कर है कि मुअन्नस है? मुज़क्कर है। मुज़क्कर है। और उसके बाद फिर आया ही। अटैच अटैच ज़मीर है वो। हाँ, वापस अटैच जमीर है, जमीर मुत्तसिल है। हालत के एतबार से जर है। जर है। वाहिद है वाहिद है। और मुज़क्कर है। मुज़क्कर है। तो ये दोनों मिलके कोई मुरक्कब बन रहा क्या? ये भी इसमें मुरक्कब इज़ाफ़ी बन रहा है। ये भी मुरक्कब है इजाफी, जिसमें इज़ाफ़ी बन पहला रहा हो है। गया मुज़ाफ और दूसरा मुज़ाफ इलैहि। मुज़ाफ़ी। चलिए, उसके बाद आया फिर वाव। हर्फ अत्फ है वाव वापस। वाव हर्फ अत्फ है। जिब्रीला जिबरीला इसमें है, इसमें अलम है। इस्म है, इसमें अलम है, अलम है। माशाल्लाह। और हालत है, एराबी नस हालत क्या है इसकी? इसकी इराबी हालत जर है, बट वो मुन- इस मुंसरिफ गैर मुनसरिफ है। माशाल्लाह। बहुत अच्छा, गैर माशाल्लाह, बहुत मुंसरिफ है। अच्छा। गैर मुनसरिफ है। गैर मुनसरिफ वो होते जिसकी सिर्फ दो हालतें तब्दील होती। डिप्टोट, आदमो आदमा, जिब्राइलो जिब्राइला, यह है गैर मुनसरिफ। बहुत अच्छे। इसके बाद है वाहिद, तस्निया जमा? वाहिद है। वाहिद है। मुज़क्कर है कि मुअन्नस है? मुज़क्कर है। मुज़क्कर है। मुज़क्कर है। चलिए, उसके बाद फिर से आया वाव। वाव हर्फ अत्फ है अत्फ है। और मीकाला। ये इसमें अलम है। इसमें अलम ही है ये भी। इसमें अलम है ये भी। अलम है। और ये भी माशाल्लाह। जरी हालत में है। ये भी जर्री और ये हालत भी में गैर है। मुंसरिफ है, इसलिए हाँ, गैर जबर है। मुनसरिफ है इसलिए। हाँ। वाहिद है, तस्निया जमा? वाहिद है वाहिद है। और मुज़क्कर है। मुज़क्कर है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो सारे इस्म के DING निकाल लिए हमने। अब ये दोनों मिलके कोई मुरक्कब बन रहे क्या? नहीं। नहीं बन रहे। मुरक्कबात हमने कितने निकाले? लिल्लाही मुरक्कब जारी हरफ जर के साथ, मलाइकती ही मुरक्कब इजाफी, व रुसुली ही मुरक्कब इजाफी, व जिब्रीला व मीकाला। अल्हम्दुलिल्लाह DING निकाल दिए, मुरक्कबात पहचान लिए। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अल्लाह आपके इल्म में इजाफा करे। चलिए, आप कौन पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट? जी, सर पिछले साइड पे वहाँ हुर्फ अतफ आ गया तो फिर वो मुरक्कब तौसीफी कैसे बनता है? ये तो अलग अलग मुरक्कब हो गया ना, जिब्राइला व मीकाइला आ रहा है ना। मुरक्कब तौसीफी नहीं है ये दो इस्म अलग अलग है। ये अलग ओके है सर, और ओके ये भी अलग है। सिर्फ हमने जी ये जी मुरक्कबात पहचानी है। वो रसूली ही मुरक्कब इजाफी, व मलाइकती ही मुरक्कब इजाफी, लिल्लाही मुरक्कब जारी। ये दो ओके नाम सर, है, अलग ओके अलग है।
रेस्ट हो गया ना? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर वो जरी चलिए, हालत में कैसा है सर जिब्रीला और मीकाला लिल्लाही की ये वजह से जर्री हालत में क्यों हुआ? देखिए, अब सब सुनिए। मन काना अदुव्वन लिल्लाही, यहाँ पे है लिल्लाही, अल्लाह के लिए या फिर अल्लाह का, ठीक है। उसके बाद आया वाव, और वो मलाइकती ही जो आया ये अल्लाह ताला के लिए आया, उसके फरिश्ते, जी अल्लाह का और उसके फरिश्तों का, जी व रुसुलिही, फिर ये ही जो आया ये अल्लाह की तरफ लौट रहा, और उसके रसूलों का, जी फिर वाव आया, और वह जिब्रीला, और जिब्रील अलैहिस्सलाम का, वह मीकाला, और मीकाइल अलैहिस्सलाम का। जी सर जी जज़ाकल्लाह खैर। सर तो ये वाव के बाद जितने भी इसमें आ रहे सर ये सब इस्राफीला और मजरूर मिकाइला में हाँ, वाव जो है ये हरफ अत्फ है, ये कंजंक्शन है, ये दो लफ्जों को या दो जुमलों को आपस में जोड़ के रखता। तो जैसा, और ये भी एक मुरक्कब है जो आगे चल के हम पढ़ेंगे, इसको बोलेंगे मुरक्कब अत्फी, यानी कि पहला वाला जैसा जुमला रहता वाव के बाद वाला सेम उसको फॉलो करते चलता। तो मुरक्कब जारी में फिर ये हम इसको काउंट कर सकते हैं क्या सर? हाँ, मुरक्कब जारी में काउंट कर सकते हैं। ये लिल्लाही है व मलाइकती, तो ये दोनों मिलके जो मुरक्कब इजाफी बन रहा, और प्लस ये लाम ज़ेर ली के साथ मुरक्कब जारी भी बन रहा। ये हरफे जर, ये इसमें मजरूर, ये हरफे जर इसमें मजरूर, हरफे जर इसमें मजरूर, हरफे जर इसमें मजरूर। तो ये लाम ज़ेर ली जो है वाव ने इसको मल्टीप्लाई करते चला, कंटिन्यू करते चला समझ। जी हाँ। एक चीज बताता हूँ मैं आपको, हमेशा याद रखो, माफी चाहता हूँ दरअसल आपको आसान है। हाफिज साहब जी देखिए मैं सूर्य फातिहा कहाँ तक हो, खाली बदले तक हुआ, आगे नहीं हुआ? आगे भी होगा इंशाल्लाह ईद के बाद। तो ये जॉइंट जो है, हाँ ठीक है, कंजंक्शन इंग्लिश में ये एंड, तो ये तराजू के पलड़े में जो है उसके बराबरी में यहाँ आना, क्योंकि इसका नाम है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ये दोनों में हम आहंगी होना, दोनों में सिमिलैरिटी हुआ तो ही बनेगा वो। अच्छा अब बोलेंगे हम हामिद भूखा है और कुत्ता भूखा है, तो कुछ बनेगा नहीं। हामिद का कुत्ते से कैसे रिश्ता बनेगा? बोलो हामिद भूखा है और उसका भाई भूखा है, अब ठीक है, यानी कि कॉमन सेंस में दोनों की इक्वलिटी है। ये रूल है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, दो चीजें एक जैसे हैं। तो यहाँ पे जर वाला अल्लाह ही है, तो आपको इसके बारे में भी सब जर में आना, अल्लाह ही आते हैं यहाँ पे। ही फिर रसूली ही, ये दोनों मुख्तलिफ है, ये दोनों नाम है, इसको नहीं रखेंगे, या तो फिर उसको बताना है तो दोनों में भी जड़ डालेंगे, लेकिन वो क्या बोलते हो, बहुत सिर्फ सिफत नहीं बने। ये लास्ट वाली आयत है, फ़इन्नल्लाह अदुव्वुल लिल काफिरीन। कौन पढ़ेंगे? सर मैं बोलूं? जी चलिए ये पढ़ लीजिए। क़ौलुम मारूफुन व मग़फ़िरतुन खैरुम मिन सदक़तिन। सर क़ौलुन क़ौलुम मारूफुन व मग़फ़िरतुन खैरुम मिन सदक़तिन। क़ौलुम इस्म है सर, नकीरा है। क़ौलुन इस्म है, नकीरा है। जी बोलिए। रफ़ा हालत में है, हालत रफ़ा है, वाहिद और मुज़क्कर है। वाहिद है, मुज़क्कर है। उसके बाद मारूफुन नकीरा इस्म है, मारूफुन भी नकीरा है। इराबी एतबार से रफ़ा हालत है, रफ़ा हालत है, रफ़ा है, वाहिद और मुज़क्कर। वाहिद है,
मुजक्कर है। माशाल्लाह, दोनों मिलके कोई मुरक्कब बन रहा है क्या? कौलुम मारूफुम, ये सिफत मौसूफ सिफत है सर। मौसूफ सिफत है, ये मुरक्कब तौसीफी बन गया। तौसीफी जी। तो पहला वाला इसमें क्या हो गया? मौसूफ सिफत और दूसरा दूसरा उसकी सिफत। सिफत जी। वाव हर्फ वमग़फ़िरतुन, अत्फ़ है। वाव हर्फ अत्फ़ है। जी। मग़फ़िरतुन नकीरा इसम है, नकीरा इसम है, रफा हालत में, हालत रफा है, वाहिद और मुज़क्कर, वाहिद है और मुज़क्कर है, मुअन्नस है, तमर्बुत मुअन्नस है, सॉरी मुअन्नस है जी। और उसके बाद है खैरुन, हाँ ये भी नकीरा है, इसमें ये नकीरा, भी नकीरा है, रफा हालत है, हालत रफा है, वाहिद है, वाहिद है, मुज़क्कर है। मुज़क्कर है। अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद है मिन हुर्फ़े जर है, मिन हर्फ जर है। सदक़तिन, सदक़तिन नकीरा है सर, इसमें नकीरा, नकीरा है, जरी एराबी हालत हालत, में है, जर्री हालत है, वाहिद है, वाहिद है, मुअन्नस है। मुअन्नस है। अब इसमें मुरक्कबात ढूंढना है, कौन से मुरक्कब मिल रहे हैं हमको। पहला मुरक्कब निकाले हमने, मुरक्कब है तौसीफी जी। अब दूसरा मिन सदक़तिन मुरक्कब जारी है सर, हाँ, मिन सदक़तिन मुरक्कब जारी है, जारी है, जिसमें पहला वाला हो गया जार और दूसरा है मजरूर। मजरूर। ठीक है। क़ौलुम मारूफुन व मग़फ़िरतुन खैरुम मिन सदक़तिन। अल्हम्दुलिल्लाह जी। ये अलग अलग है ना, मग़फ़िरतुन अलग है, खैरुन अलग है। हाँ नहीं, मतलब मैं इसी वजह से आपको नहीं बता रहा कि हमने अभी तक कंप्लीट जुमला नहीं पढ़े, ना जुमला इसमिया हुआ हमारा और ना ही जुमला फेलिया हुआ, इस वजह से मैं उसको छेड़ रहा नहीं। देखिए फिर भी कौलुन मारूफुन अच्छी बात, हाँ, व मग़फ़िरतुन और माफ करना, अच्छी बात करना और माफ करना, खैरुन के मायने है बेहतर, बेहतर है, मिन सदक़तिन सदक़े से, और ये आयत भी आदि है, सदक़े से बेहतर है, फिर वो मतलब गलत गया। मिन सदक़तिन यतबउहा अज़ा है, यानी कि ऐसे सदक़े से जो तुमको अजियत पहुंचाए, उससे बेहतर है कि अच्छी बात करो और किसी को माफ करो। हाँ, ये है इसका तर्जुमा। असल में ये लेने का मकसद ये है, ये प्रैक्टिस जो ली जा रही, ये इसका मकसद ये है कि इस्म को पहचानना और उसका DING निकालना और मुरक्कबात पहचानना। फिर जब हम जुमला पढ़ेंगे तो उसमें तमाम चीजें समझ में आएंगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक के बहुत सारे लोगों ने किए और किसी की कोई गलती नहीं हुई, अल्हम्दुलिल्लाह किसी की कोई गलती नहीं हुई। अल्लाह ताला आप तमाम को इल्म नाफ़िअ अता फरमाए, हम सबके पढ़ने पढ़ाने को कबूल फरमाए और सर को इसका बेहतरीन बदला अता फरमाए। अल्लाह ताला सर के जरिए से बेहतरीन मुअल्लिमीन बनाए जो तमाम आलम में सारे दुनिया में फैलकर कुरान को सीखने सिखाने का काम करें। आप सबको अल्लाह जज़ाए खैर अता करे सर। आमीन आमीन। अभी एक दूसरी एक ऐलान है ईद का। हाँ, अभी परसों के दिन ईद है और कल है यौम अरफा, तो बहुत सारे लोग रोजा भी रहने वाले हैं। तो कल यानी कि जुमेरात, जुमा है ना, कल जुमा, हफ्ता, इतवार और पीर, ये 4 दिन क्लास को छुट्टी रहेगी। मंगल के दिन से क्लास स्टार्ट होंगी इंशाल्लाह जी। और कोई किसी को कुछ पूछना है, कुछ बोलना है तो बोलिए। सर आप भी तो अच्छा से पढ़ाते हैं सर, समझाते हैं। पीर को नको सर छुट्टी, पीर को थोड़ा सा तो सुस्त रहते ना जरा, खाके खाके सुस्त रहते नहीं सर, ट्यूसडे ना सर कल से ही छुट्टी है ना।
हाँ, कल से छुट्टी रहेगी। सर एक क्वेश्चन है सर, जी पूछिए। सैटरडे संडे बेस्ट। जैसे ला के बारे में बताते थे सर आप, ला अक्षर लिखे हो तो ला, आगे आने वाले इसम को अकफ कर देता ना सर ला। हाँ हाँ, जी जी जी। तो उसी तरह सर काफ भी कुछ मतलब उसकी कैरेक्टरिस्टिक है क्या सर? जैसे हाँ, काफ, तो जो आउ कसई बिन में है ना सर, काफ के बाद जो आने वाला इसम है ना जर में है, तो जी काफ जी। भी ऐसे कैरेक्टरिस्टिक रखता है क्या कि आने वाला इसम? हाँ, काफ भी असल में जो है हरफ जर है, वो लिस्ट में नहीं लिखाई दे। सर ने जो लिस्ट दिए थे उसके अंदर है, मैंने जो लिस्ट दिया था उसके अंदर काफ जबर का नहीं है, वो भी ऐड कर लीजिए। काफ जबर का जो है वो भी हरफ जर है, वो भी अपने बाद आने वाले इसम को हालत जर में लेके जाता। 2 दिन जर लेंगे अब, हाँ, और 2 दिन जर लेंगे। सर इजा क्या है सर? इजा इजा भी एक हर्फ है। कौन सा हर्फ बोलेंगे इसको? हरफे शर्तिया। शर्तिया। हाँ, इजा जी। और मासी भी तो आएंगे सर, आगे पढ़ते चलेंगे तो ये तमाम चीजें आ जाएंगी इंशाल्लाह जी। और किसी को कुछ पूछना है? हाँ अकब है, अकफ है बोलना। हाँ, अखफ थोड़ा क्या उसके करना है? बारे में बोल। अखफ करना। अखफ के मायने मालूम है आपको क्या है? एज्यूम करना, क्या कहते हैं? नहीं हल्का assume करना। रिड्यूस करना सर ने बताया था। सही है। रिड्यूस करना, हल्का करना। किताबुन है, अल किताबुन है तो पेश भी चले जाता और अल भी चले जाता वैसे। हाँ, अलिफ लाम भी चले जाता और उसका तनवीन का एक पेश या एक जबर या एक जेर, तीनों भी चले जाते, तो उसको बोलते हैं अखफ किया हुआ। अलिफ अलिफ खा खाफ फे। अलिफ खा और फा, अलिफ खे फे। अच्छा हाँ सर और एक क्वेश्चन। जी पूछिए। सर ये जो कुंतुम है, जैसे कुंतुम है ना सर, ये जी काना और अंतुम से बना कुंतुम, तो इसमें हाँ अन का मतलब कैसे ड्रॉप हो रहा है? जैसे कुंतुम एक है और एक खिफ्तुम है, हाँ, खिफ कुंतुम, तुम ये इसका एक बार बताना सर, अना वो कैसे ड्रॉप होता है इसमें और क्यों होता है, मतलब थोड़ा इसका डिटेल सर। अब 3 दिन छुट्टी है ना सर इसलिए। जी असल में कैसा है सर, ये एक टॉपिक है। हाँ सर। आप जो सवाल पूछ रहे हैं ये एक टॉपिक है। जैसा मैंने एक लफ्ज इस्तेमाल किया था कि तालीलात, हुदन के वास्ते जो तालीलात का इस्तेमाल हुआ था ना, हाँ सर। तो वो एक पूरा टॉपिक है तालीलात का, जिसके अंदर आते हरफे इल्लत, यानी कि अलिफ वाव और या के जरिए से जो अल्फाज बनते, जिसमें पढ़ने के लिए अगर मुश्किल हो रही तो उसको तब्दील करते थोड़ा थोड़ा सा, कभी हरकत में तब्दील कर देते, कभी वो हर्फ हम हटा देते, तो उसको बोलेंगे तालीलात करना। तो आपने पूछे काना के बारे में, काना से बनता कुंतु, और काना और कुंतु, ये काना भी एक फेल है, कुंतु भी एक फेल है। तो जब हम फेले माजी पढ़ने वाले हैं, अभी ईद के बाद का ये जो टॉपिक शुरू होने वाला है फेले माजी का, उसके अंदर ये चीज आएंगी, तो थोड़ा सा सब्र कीजिए, उस वक्त में बताएंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी तो प्रैक्टिस करने के दौरान सर ये लफ्ज आ रहे हैं ना सर, इसलिए थोड़ा। हाँ जी जी जी। हाँ, कुंतु के मायने है मैं था, काना के मायने है वो था, या फिर है भी हो सकता मैं हूं वो है। तो ये और सर थोड़ा सा टॉपिक बड़ा है जी। ईद के बाद सर कौन सा टॉपिक रहेगा सर अभी, मतलब ईद जुमला के बाद तो इसमें? अभी हमको जुमला पढ़ना है, सेंटेंस पढ़ना है। जुमले में जैसा सर ने बताया कि जुमला, अभी हमने सादा जुमला पढ़े। एक जुमला है जिसके अंदर हमने सादा वाहिद वाहिद इस्म यानी कि मुफरद मुफरद देखे, मारिफा नकीरा। फिर उसके बाद हम आगे बढ़े कि मुफरद मुरक्कबात उसके अंदर ऐड कर दिए, जैसे वलदु ज़ैदिन सालिहुन, तो ये मुरक्कबात ऐड हो गए इसके अंदर। अब इसके आगे हम बढ़ेंगे, जुमला इस्मिया में ताकीद पैदा करना, उसके अंदर आएगा इन्ना, इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, इन्ना है, काना है, फिर लैसा है। तो जुमला जो है इसको एक एक स्टेप आगे बढ़ते बढ़ते इसको कंप्लीट करेंगे, तो ये सारी चीजें फिर उसमें आएंगी। तो अभी जुमला पढ़ेंगे हम, ईद के बाद जो पढ़ेंगे वो सेंटेंस पढ़ेंगे, जुमला इस्मिया। ठीक है सर। जुमला इस्मिया की अलग अलग किस्में जो है।
السلام علیکم سر. پچھلے کلاس وعلیکم السلام. کی ریکارڈنگ نہیں ڈالے سر. پچھلے کلاس کی ریکارڈنگ نہیں ڈالے, وہ آج ڈال دیں گے انشاءاللہ. شکریہ. جی گھر میں بکرا کود رہا ہے. چلیے, اور کوئی پوچھنا ہے یا آج ہم کلاس ختم کریں گے پھر؟ تو منڈے یا ٹیوزڈے؟ دعا میں یاد رکھنا کل. جی سر ٹیوزڈے. ٹیوزڈے جی سب لوگوں کا ایک بار پوچھ لو. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹیوزڈے. اور باقی لوگوں کی کیا رائے ہے؟ سر سیٹرڈے کویشچن کا کھلا رہیں گا سر, جیسے پچھلے سیٹرڈے کھلا تھا. ہاں اچھا, ہاں یہ اچھا یاد دلایا, جزاک اللہ خیرن کثیر. ہم کیا کریں گے, اگر ٹیوزڈے سے کلاس ہے تو ہم منڈے کے دن گروپ چیٹ اوپن رکھیں گے. اگر منڈے سے کلاس رہے گی تو پھر سنڈے کو چالو رکھیں گے. سیٹرڈے. جی, تو ٹیوزڈے بھی صحیح ہے. جی, تو انشاءاللہ پھر آنے والے منگل سے کلاس شروع ہو جائیں گے. آپ تمام لوگ تیار رہیے, اور جو پہلے جو پڑھ کے چلے گئے ان لوگوں کو بھی لے کے آئیے, تھوڑا سا جگائیے ان کو. ابھی کو یہ اور السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر یہ اپنے کو امپورٹنٹ جو ٹاپکس ہیں نا, اس میں پھر سے ریپیٹ اپنے کو اگر کرنا ہے کہ جو ہارڈ ڈیسک میں ہے تو کون سے لیسن مطلب وہ ہے, ذرا بولے تو ریپیٹ کرنے کے لیے. اسم کو پہچاننا, جی مرکبات بنانا اور نکالنا, جی یہ ٹاپک ہے صرف 2. نام صرف 2 ہے لیکن بہت بڑا ہے, جس کو ہم نے 1.5 مہینہ ہم کو پڑھنے کے لیے لگا. تو اب اس کے اندر ہم نے جو چیزیں پڑھے, آپ قرآن کی سوروں میں سے, دعاؤں میں سے, آیتوں میں سے نکالتے چلیے. کوئی بھی اسم ہے تو اس کا DING نکالنا ہے. معرفہ ہے تو کیوں معرفہ ہے, اور جیسا جبریل و میکالا ہے تو اس میں علم ہے تو پھر اس کے اندر اس میں علم منصرف ہے کہ غیر منصرف ہے, اعرابی اعتبار سے مبنی ہے, منصرف ہے, غیر منصرف ہے, کیا ہے, یہ تمام چیزیں آپ, یہ جو پریکٹس تھی اصل میں یہ اسی کی تھی. جی جی جی. کون سے ایک مطلب ایپیسوڈ یا کیا بولتے ہیں اپنا لیسن جو ہے نا, جی جی کون سے بولے تو میں وہ پھر سے ریوائز کرنے میں ضرور. اچھا, ویڈیوز دیکھنے کے لیے. اچھا ہاں, نہیں ویڈیوز کے اندر آپ پلے لسٹ میں جائیے, وہاں پہ اوپر ٹائٹل دیا ہوا ہے, وہ ٹائٹل پڑھ لیجئے. آپ کو جو بھی ٹاپک ہے وہ ٹاپک پڑھ کے اس کے اندر ویڈیو دیکھ لیجئے. وہ جی, ذرا گروپ میں ٹاپکس کے نام مینشن کریے نا سر, جو امپورٹنٹ ہے, جو ریویژن کرنے کے لیے. جی ٹھیک ہے, گروپ میں ڈال دیں گے انشاءاللہ. اوکے, جزاک اللہ. آمین. تو چلیے رکیں گے یہاں پر. آپ تمام سب کو ایڈوانس میں عید مبارک. تقبل اللہ منا ومنکم. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرا کثیرا سر. عید مبارک سر. جزاک سر اللہ یہ خیرا. سر کتاب نہیں مل سکتی ہے. کتاب بھیجے نا گروپ میں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پوری کتاب ہے سر یہ گروپ میں. پوری کتاب بھیج دی گئی والی ہے.